Dear students, you are studying about climate. This is the fourth lesson of your class 9 syllabus. It is the portion of second term exam. In the last two chapters, you have studied about landform and drainage. And now you are going to study about climate. When you will study about climate, you will have a complete idea about the natural environment of our country. In climate, you are going to study about the atmospheric conditions that prevail over our country. You already know that during winter season, the temperature falls. During summer season, the temperature rises. During rainy season, there is lot of rainfall. So there are a variety of differences in our atmospheric conditions. And by studying our atmospheric conditions, we derive two terms in this lesson: climate. Number one, climate, and number two, weather. What is climate? Firstly, climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. What is the time limit? More than 30 years. More than 30 years. So this is the average atmospheric condition, which is studied on the basis of the elements like temperature, atmospheric pressure, precipitation, humidity, wind, etc. These 5 elements are studied, and its average condition is studied for a very long period of time. That long period of time is more than 30 years. And on the basis of this, climate of a region is defined. Right? But what is weather? Weather is also the atmospheric condition, but it is only for a short period of time. Weather is for a short period of time. For example, you can say that today weather is very humid, weather is very hot, or if the wind is not blowing, then you can say that today's weather is calm weather, calm, CALM, calm. मतलब विंड एकदम शांत रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? काम वेदर कहते हैं. अगर आसमान में बादल है तो क्या कहते हैं? ये क्लाउडी वेदर है. और भी कई सारे टर्म दिए गए हैं वेदर के लिए. एक टर्म है सल्ट्री, SULTRY, सल्ट्री. सल्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल होता है कि टेम्परेचर भी ज्यादा रहती है और गर्मी भी, ये उमस भी ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है. तो ऐसे वेदर को क्या कहते हैं? सल्ट्री वेदर कहते हैं. ठीक है, तो वेदर को कई तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि today's weather is calm weather, today's weather is sultry weather, today's weather is muggy weather, today's weather is calm weather. calm मतलब एकदम शांत वेदर है, मतलब हवा चल नहीं रही है, ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि हवा चल रही है. तो इतना जब शांत होता है, तो बिल्कुल हवा का मूवमेंट पता नहीं चलता है, तो उसको क्या कहते हैं? काम वेदर कहते हैं. ठीक है. Some students are working. अच्छा, ओके. एंड तो ये समझ गए ना कि वेदर और क्लाइमेट क्या है. दोनों में ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन का स्टडी करते हैं, लेकिन क्लाइमेट जो होता है एक लंबे समय का और एक बहुत बड़े रीजन का एवरेज होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का. और वेदर क्या होता है? एक छोटे से रीजन का, छोटे से एरिया का और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर का स्टडी होता है. तो वेदर जो है ना, वो मोमेंट्री होता है. मोमेंट्री मतलब समय समय पे ये बदलता रहता है. तो जैसे कि एग्जांपल तुमको दे ही दिए कि सुबह से सनी वेदर है, हो सकता है कि शाम को रेनी वेदर हो जाए. तो ये जो 24 आवर्स के अंदर बदलता रहता है, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं. तो सबसे पहले तुम यहाँ एक क्वेश्चन लिख लो. All of you start writing. Are you ready with your copy and pen? Yes, ma'am. हाँ, तो लिखो. Define climate and weather. Define climate and weather.
ठीक है ना, लिखते चलो तेजी से। और तुम्हारे सामने किताब भी है। पहला लिखो क्लाइमेट। क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area. Are you listening, Manya? Yes, ma'am. All of you will give response. See the paragraph and write. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations. Variations matlab differences over a large area. Over a large area for a long period of time. Over a large area for a long period of time. Within bracket, you will write more than 30 years. Now change the paragraph and write about weather. Weather refers to the state of atmosphere Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. और फिर यहाँ से ना एक पैराग्राफ चेंज करके एलिमेंट्स को एक साथ लिखो, क्योंकि एलिमेंट्स दोनों के लिए हैं, वेदर के लिए भी, क्लाइमेट के लिए भी। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर सेम, दैट इज टेम्परेचर, नंबरिंग भी कर लेना, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेदर और क्लाइमेट का डेफिनेशन आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसको लिख लो, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, कॉमा, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अब एक एक करके सबका मीनिंग समझेंगे यहाँ पर। Have you written? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो टेम्परेचर तो देख लिए यहाँ पे। सबसे पहला एलिमेंट क्या है जिसमें हम जिससे हम क्लाइमेट या वेदर का पता करते हैं, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, इसके लिए थर्मामीटर यूज होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक अलग थर्मामीटर होता है जिससे ये होता है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मेजर करते हैं बैरोमीटर से, है ना, एक अलग इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। उसी तरह से एक है ये विंड। विंड में 2 चीज का स्टडी करते हैं कि विंड का डायरेक्शन क्या है और विंड की स्पीड क्या है। तो स्पीड के लिए एनीमोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और विंड वैन से डायरेक्शन का पता चलता है, तो ये स्टडी करते हैं। फिर ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। आर यू सीइंग व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द say Water vapor in the air. amount of moisture present in the air is known as humidity। ठीक है, और उसके बाद क्या है, precipitation। तो precipitation को ये लिख लो, आंसर लिखो तो what is precipitation। एक लाइन में इसका आंसर लिख लो, what is precipitation।
What is precipitation? Start writing answer. Precipitation is the coming down of moisture Precipitation is the coming down of moisture from the atmosphere to the Earth's surface in the form of rainfall, snowfall, sleet, S-L-E-E-T, sleet, comma, hail, H-A-I-L, hail. Ma'am, Rainfall. of moisture from Coming down of the moisture के बाद Coming down of moisture from the atmosphere to the Earth's surface. To the Earth's surface is known as precipitation. They are in various forms. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रेसिपिटेशन के, वो एग्जाम्पल्स लिख लो. रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, hail, H-A-I-L, hail, etc. Sneha, repeat the answer. What is precipitation? You are not present, Sneha. Present, Sneha. Huh. Any other student? Ma'am, Huh. What is precipitation? precipitation is the coming down of moisture from the atmosphere to the Earth's surface is called precipitation. It has various forms: rainfall, snowfall, etc. Huh. Rainfall, snowfall, sleet, S-L-E-E-T, sleet, hail, H-A-I-L. हेल का मतलब होता है ना जो छोटे छोटे स्टोन्स के फॉर्म में आइस गिरता है ना कभी कभी, तो उसको हेल कहते हैं, हेल स्टोन भी कहा जाता है उसको. जैसे यहाँ पे भी बिहार में भी और इधर ईस्टर्न इंडिया में हेल स्टोन आती है ना कभी कभी. अप्रैल के महीने में शाम को जब बारिश आती है तो हेल स्टोन आ जाता है. दिल्ली में बहुत सारा हेल स्टोन हुआ था इस बार. तो इस तरह से हेल स्टोन, स्लीट, मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेनफॉल का फॉर्म हो, स्नोफॉल हो या सॉलिड आइस हो, किसी भी तरह से जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे आता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं, है ना. तो प्रेसिपिटेशन में ना ज्यादा परसेंटेज किसका होता है बोलो? Snowfall. रेनफॉल का होता है. 90% तो लगभग रेनफॉल ही होता है और बाकी 10% में वो सब होता है, स्नोफॉल, स्लीट, हेल स्टोन, ये सारे. रेन ज्यादा हुआ ना और फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज लिंगरिंग कर रही, नहीं सुनाई दी. मैम. रेन ज्यादा हुआ. रेनफॉल ज्यादा हुआ है ना. इंडिया में भी क्या है, रेनफॉल ज्यादा होता है और कहीं कहीं हायर ऑल्टीट्यूड में देखेंगे तो वहां पे स्नोफॉल होता है ना. हिमाचल प्रदेश में देखो, उत्तराखंड में देखो, वहाँ स्नोफॉल हो सकता है. हिमालयन बेल्ट में स्नोफॉल होता है. और फिर हेल स्टोन तो ये नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में होता है अप्रैल महीने में, है ना, जब शाम को तेज आंधी आती. विंड का स्पीड एनीनोमीटर है और उसके बाद सेकंड विंड वैन, VANE, वो डायरेक्शन मेजर करने के लिए कि विंड नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है कि साउथ या ईस्ट वेस्ट, विंड का डायरेक्शन बताता है. विंड वैन, VANE. एनीमोमीटर. एनीमोमीटर, ANEMO, एनीमोमीटर.
तो देखो ये क्लाइमेट हो गया। Yes, ma'am. क्लाइमेट जैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का मॉनसून क्लाइमेट है। तो मॉनसून क्लाइमेट ना एक बहुत बड़े रीजन में है, सिर्फ इंडिया ही नहीं है उसमें, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब देश आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक रीजन। तो क्लाइमेट ना एक बहुत बड़े रीजन को डिनोट करता है और बहुत सालों का 30 इयर्स से ज्यादा का ये एवरेज होता है, मतलब सेम कंडीशन चला है, इसलिए उसको एक क्लाइमेटिक रीजन में रखा जाता है। तो दुनिया में देखोगे ना कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है। तो पूरे वर्ल्ड को करीब करीब 11 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। इक्वाटोरियल क्लाइमेट है तो पोलर क्लाइमेट है ना। पोलर रीजन के पास कौन सा क्लाइमेट होगा, पोलर क्लाइमेट हो गया। इक्वेटर के पास इक्वाटोरियल क्लाइमेट हो गया। इंडियन ओशन के आसपास वाले जो कंट्रीज हैं वहां पे हमारा मानसून क्लाइमेट हो गया, ठीक है। फिर पोलर रीजन से थोड़ा सा साउथवर्ड बढ़ोगे ना, एकदम पोल से थोड़ा साउथ, तो वहां पे वो है टाइगा है, मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट वाला रीजन है वो। तो वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट हो गया वो सब रीजन में। जहाँ जहाँ डेजर्ट है उसको ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट के अंदर रखा जाता है। जैसे वो है ना सहारा डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट, वेस्ट एशिया का अरेबियन डेजर्ट, ये सब सारे डेजर्ट मिला दो तो एक क्लाइमेटिक रीजन हो गया। तो इस तरह से ना पूरे वर्ल्ड को करीब करीब 11 क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया। और वेदर तो लोकल होता है, वेदर तो अपने अपने जगह का अलग अलग होता है। जैसे पटना का वेदर कुछ है तो दिल्ली का वेदर कुछ अलग है, ऐसे ऐसे अलग अलग होता है, वो लोकली होता है वेदर, है ना। ये मोमेंटरी होता है, मतलब कुछ समय के बाद ये चेंज होते रहता है, उसको हम वेदर कहते हैं। लेकिन सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का एक लंबे समय तक जो एवरेज स्टडी किया जाता है और एक बहुत बड़े रीजन में ये कैसा रहा है, उस बेसिस पर हम वहाँ का क्लाइमेट बताते हैं। तो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस है। अब आगे देखो, सीजन्स के बारे में थोड़ा देख लो। क्लाइमेट और वेदर हो गया, अब हमारा क्या टॉपिक है, सीजन्स। यहाँ से देखिए, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट ओवर ऑफ एन इवेंट विद इन अ डे। ये वेदर के बारे में लिखा है कि वेदर एक दिन के अंदर भी बदल सकता है, बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, दैट इज डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, काम मतलब बिल्कुल क्वाइट, शांत, क्लाउडी और ब्राइट, ब्राइट मतलब बहुत धूप वाली वेदर, एंड वेट और ड्राई, वेट मतलब रेनी हो गया और ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा। हाँ। अब ये देखो, ये लाइन देखो यहाँ से, ऑन द बेसिस ऑफ the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as winter, summer, rainy season, है ना। जैसे तुम खुद से एक्सपीरियंस करके देखो कि जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सब में कैसा रहता है, टेम्परेचर डाउन ही रहता है, लो ही रहता है। तो उस बेसिस पर वहाँ के कुछ एलिमेंट्स के स्टडी के बेसिस पर हम उसको क्या कह दिए, विंटर सीजन हो गया। समर सीजन के समय जैसे मार्च, अप्रैल, मई ये सब महीने में टेम्परेचर हाई रहता है, तेज हवा, गर्म हवा चलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समर सीजन हो गया हमारे लिए। फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत बारिश होती है तो वो हो गया रेनी सीजन। तो जो जनरलाइज्ड मंथली कंडीशन है ना, उस बेसिस पर, जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेसिस पे हम पूरे साल को सीजन्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्लाइमेट, वेदर और क्या बोलो, सीजन्स, क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन।